Hello friends, today we are going to do the chapter Power Sharing. Power Sharing, Story of Belgium. Let's start with the Belgium. So Belgium is a small country in Europe with a population over 1 crore. So Belgium is a small country of a Europe. It has a population of just 1 crore. So you can imagine that India is a country which have a population of Sawa crore means it's a large amount number. So you can imagine it's a small country and a medium population. About half of the population of Haryana. Yes, it is a half population of Haryana. हरियाणा का भी आधा ही population उसमें रहता है. Of the country's total population, 59%. So the country का जो total population है उसमें से 59% उसमें से 59% are Dutch, speaks Dutch. So the 59% is speaks Dutch and 40% speaks French. Total population में से 59% speaks Dutch, 40% speaks French, and remaining 1% speaks German. Look at the map below to know the language variation of Belgium. So let's see the map to see the language variation. The minority French. French a minority. Uh, so minority the minority French-speaking community was rich and powerful. So the French-speaking are rich and powerful, and so they got the benefit of economic development and education. So the community was like French was what we can say minority, but then too they have power and they were very rich, and they have all the rights of education and economic development. This creates tension between the Dutch-speaking and French-speaking community during 1950s and 60s. So this create tension between Dutch speaking and French speaking in 1950s and 60s. So so what happened? Accommodation in Belgium. So accommodation means dividation in Belgium. In Belgium, the government handled the community difference very well. Between 1970 to 1930, Belgian leaders accommodate their constitution for 4 times come up with a new model to run government. So between 1970 and 1993, the Belgian leaders जो थे तो उनका जो constitution was changed 4 times. I think there is no need for this. कोई बात नहीं. Okay. तो 1970 से 1993 तक उनका constitution 4 times change हुआ. Here are some elements of Belgium model. Constitution prescribes that number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in central government. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शुड बी इक्वल होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ उसमें ये हुआ. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. So thus no single community can make a decision.
यूनिलैटरली। सो मेजॉरिटी को राइट्स नहीं थी, तो उनके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया था, जिससे जो कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी उसका डिसीजन, खुद का अकेले का डिसीजन अप्लाई ना कर सके। सो आई हैव नॉट टॉट टीच यू दिस। तो इसमें क्या है कि ये ब्रुसेल है, ये कैपिटल सिटी है। तो लेट मी राइट Brussels is the capital city of Belgium। जो रेड पार्ट दिख रहा है तो वो वुलन, डिवाइडेड इनटू फ्यू स्टेट्स। तो ये एक वुलन रीजन है, रेड और ऑरेंज है वो ब्रुसेल है, कैपिटल सिटी है। फ्लैमिश, जहाँ वुलन में सी, आई विल राइट, ओ सॉरी, वुलन में फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, और वो रीच है, माइनॉरिटी है लेकिन फिर भी वो लोग बहुत रीच है। फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकिंग रहते हैं, और जो जर्मन स्पीकिंग है उनको कौन सा पार्ट दिया गया है, उनको जो बाउंड्रीज है वो वाली दी गई है, ये वाली। तो समझ में आया होप सबको। तो ये चीज़ याद रखनी, और याद रखने कि 1970 से 19 1993 उनका कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बदला? बहुत बार बदला, 4 बार बदला। तो ये याद रखना है। सेकंड क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सबऑर्डिनेट मतलब कि उनका रैंक कम नहीं है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट मतलब कम नहीं है, उनकी वैल्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी ही है। दे आर नॉट लेस, what we can say, less in power. Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. So here they have Flemish, Woland region have their own uh, state government. Flemish region have their own state government, and the Brussels is the capital region where both the government have equal representation. Okay. Apart from central and state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. There is a third kind of government, and this community government is elected by people belonging to one language community. So they are elected by people belonging to only one language, like Dutch, no matter where they live. So when they speak a common language, they can elect a community government. This government has power regarding cultural and education. They have power in cultural, educational, and language related issues.
ओके, सो लाइक इफ अगर ब्रुसेल में अगर राम मंदिर जैसे उनका कोई चर्च की कोई प्रॉब्लम आती, जैसे हमारे इंडिया में अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट होती और इंडिया में राम मंदिर जैसे केस चलता, तो वो केस कौन हैंडल करता? वो कम्युनिटी गवर्नमेंट हैंडल करती, क्योंकि वो कल्चरल केस है। तो समथिंग लाइक दैट। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ऐसे एग्जाम्पल्स लेके यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। Belgium model was very complicated, but it helped to avoid civic strife between two major communities. तो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो कम तो हुआ एटलीस्ट। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था, लेकिन फिर भी लड़ाई नहीं हुई। सो अभी देखते हैं कि स्टोरी ऑफ श्रीलंका क्या है। श्रीलंका सबको पता है कि हमारे नीचे बाजू में ही रहती है, हमारे नीचे ही रहती है। Now let's take a situation of another country. देखते हैं दूसरी कंट्री का क्या हाल है। It is an island nation having a population of 2 crore. So उसमें 1 करोड़ थी बेल्जियम में, इसमें 2 करोड़ है। As about the same as in हरियाणा। हरियाणा की भी 2 करोड़ ही है। श्रीलंका has diverse population diverse है। Major social groups are Sinhala speaking. तो सिंहला एक लैंग्वेज है, तो वो 74% वो लोग बोलते हैं। फिर है तमिल स्पीकिंग, जो 18% लोग तमिल बोलते हैं। 74% सिंहला बोलते हैं, 18% तमिल बोलते हैं। अमंग तमिल देयर आर 2 ग्रुप्स। तो तमिल में भी 2 ग्रुप्स है। श्रीलंकन तमिल मतलब जो श्रीलंका के तमिल है वो, और इंडियन तमिल मतलब इंडिया के जो तमिल है वो। So you can see the map below to know the population distribution of different. So देखिए हमने क्या याद रखा कि बेल्जियम का 1 करोड़ है, श्रीलंका की 2 करोड़ पॉपुलेशन है। बेल्जियम में 59 डच स्पीकिंग थे जो मेजोरिटी थे, और 40 फ्रेंच स्पीकिंग थे, और 1% जर्मन स्पीकिंग वाले थे। अभी श्रीलंका में सिंहला 74% है और तमिल स्पीकिंग 18%। और जो तमिल स्पीकिंग में भी जो 18% है, उसमें से श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल भी 2 अलग अलग है। तो जो श्रीलंकन तमिल है तो वो कितने परसेंट है वो आपको जानना होगा। मतलब शायद क्वेश्चन होगा, तो मैं बोलती हूँ कि जो 1 मिनट, और जो 7% क्रिश्चियन है और 1% मुस्लिम है। यू कैन श्रीलंकन तमिल कितने परसेंट है वो मैं अभी बताती हूँ। सो जो श्रीलंकन तमिल है वो है 11%। वो 11% है। 1 मिनट, ये और इंडियन तमिल होंगे वो, मतलब माइनस कर दीजिए तो 8 हो जाएंगे। ओके, सो अगर आपको इसका भी लेना था तो उम्मीद है। अभी हम एथनिक कंपोजिशन देखते हैं श्रीलंका का। ये तो कुछ ज़्यादा ही ब्रॉडन हो गया। ओके, तो ये जो कोस्टल रीजन है उधर कौन से श्रीलंकन तमिल ज़्यादा पाए जाते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर जो ये येलोइश पार्ट है उसमें सिंहला का 74%। हमारे श्रीलंकन तमिल कितने हैं? 11%। सिंहला 74%। ये चैप्टर में सिर्फ यही याद रखना कि ये इतने परसेंट है और कुछ नहीं याद रखना, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर ये जो रेड कलर जैसा है, चेरी कलर जैसा है, वो इंडियन तमिल इधर रहते हैं, इंडियन। और इधर भी
ये कोलंबो है। कोलंबो पता है क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। In Sri Lanka, Sinhala's community handles the bigger majority and impose it। जो सिंहलाज है वो अच्छी मेजोरिटी और में है, तो सारी राइट्स एंजॉय करते हैं वो लोग। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? मेजोरिटिज्म का प्रॉब्लम आया। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो इसमें भी सिंहलाज ही कम्युनिटी सब मेजोरिटी वाले थे, तो वही सब पे राज करते थे। So Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. So Sri Lanka got independence in 1948. So इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिला। जो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सिंहला कम्युनिटी वाज अ मेजर majority, so they had formed the government। so वो लोग मेजॉरिटी में थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। they also followed preferential policies that favored Sinhala and applicants for university position and government job। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज पुट की, अपनी पॉलिसीज पुट फॉरवर्ड की कि उन्हें फ़ायदा हो, उन्हें गवर्नमेंट की जॉब अच्छी मिल जाए, यूनिवर्सिटी में पोजीशन भी अच्छी मिल जाए। यू मस्ट बी नोइंग द केस ऑफ गुजरात हार्दिक पटेल, जिसने जो क्या बोलते हैं, वो अपने अनामत के लिए लड़े थे। तो वैसे ही वो भी, ये लोग भी ऐसा चाहते कि उनको भी अच्छी पोजीशन मिले और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो दिस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। जो श्रीलंकन तमिल्स थे, तो उनके तमिल्स जो थे श्रीलंका के, तो उनके बीच में एलिनेशन मीन्स व्हाट वी कैन से, लाइक क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, सेपरेशन। एलिनेशन मीन्स जुदाई, सेपरेशन। उनको सेपरेशन फील होता है, हमें अलग कर रहे हैं, इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं। सो दे थॉट लाइक हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। श्रीलंकन तमिल्स felt that the constitution and government policies denied the equal right and discriminate against them in getting jobs and opportunities and ignore their interests। This line is very important, this sentence। तो श्रीलंकन तमिल्स को क्या लगा कि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई है, तो वो उनकी पॉलिटिकल राइट डिनाइड करती है, उनकी जॉब्स को डिस्क्रिमिनेट करती है, उनकी जॉब गेटिंग अपॉर्चुनिटीज को, उनका इंटरेस्ट इग्नोर करती है, उनको ऐसा लगा। ड्यू टू दिस द रिलेशन बिटवीन सिंहलास एंड तमिल कम्युनिटीज बिकम पुअर। तो इसकी वजह से जो रिलेशन था कम दोनों का, वो पुअर हो गया। So Sri Lankan Tamil launched a party and struggled for the recognition of Tamil as a official language for regional autonomy। So श्रीलंकन तमिल ने क्या किया कि अपनी खुद की पार्टी क्रिएट की। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी क्रिएट की जो उनको रिकॉग्नाइज करे, उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती है। सो क्या हुआ, बट देयर फिर क्या हो गया, उनका जो डिमांड था वो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिनाइड कर दिया। सिंहलाज की थी, उनके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने उनका जो तमिल का जो पार्टी फॉर्मेशन का था, वो उन्होंने डिनाइड कर दिया। दिस distrust between two communities turned to widespread conflict and turned to civil war। तो अब क्या हुआ, वॉर चालू हो गई, सिविल वॉर चालू हो गई। As a result, thousands of people of both communities were killed। कितने सारे thousands of people were killed। Many families were forced to leave the country। बहुत सारी families were forced to leave the country and many of them lost their livelihood। सिविल वॉर हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, उनकी इकोनॉमी ब्रेक हो गई, सोशली ब्रेक हो गए।
और कल्चरली ब्रेक हो गए। तो द सिविल वॉर एंडेड इन 2009 में एंड हुआ था and caused a terrible setback to social, cultural and economic life of country. We have learned from the story of Belgium and Sri Lanka what we have learned. So let's see what we have learned. So both countries democracies, are democracies, but they defend. They deal differently with the concept of power. They both have different concept of power share. In Belgium, the leaders have realized the unity of country is possible only by respecting the feelings and interest of the community and region. This is a result to mutually acceptable arrangement for power sharing. तो बेल्जियम में क्या हुआ कि जो लीडर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सबका इंटरेस्ट सबकी फीलिंग्स होनी चाहिए। तो तो अ, उन्होंने सबकी फीलिंग्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर एक अच्छा रूल बनाया। तो सबके लिए अच्छी अरेंजमेंट करवाए पावर शेयरिंग। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका shows that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share, it is determine the unity. It can undermine the unity of the country. तो इस श्रीलंका में क्या हुआ कि जो मेजोरिटी है उनको राइट मिलनी चाहिए, सब ऐसा मानते। अगर ऐसा मानते हैं तो जो माइनॉरिटी है वो लोग को राइट्स नहीं मिलेगा और ये अंडरमाइन यूनिटी करेगा कि कंट्री की यूनिटी को डिस्ट्रॉय करेगा। वाई अ पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? यू विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द पॉइंट बिलो। चलिए तो देखते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. So, power sharing conflict reduce करता है। Second reason is democratic rules involve sharing with those affected to the exercise and who have to live with its effect. People have right to be consulted to how they are to be governed. So मतलब it's not only a particular community who can rule or rule on the minority ones, but it is the right of people to choose how they would be governed. So let us call the first set of region prudential and the second as a moderate. Prudential means uh, क्या बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना और सेकेंड इज अ मोरल। Prudential reason stress that the power sharing will bring out the best outcome। हाँ मतलब मैंने जो बोला वही। A moral means emphasis the act of power sharing is valuable। मतलब पावर शेयरिंग का जो एक्ट है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कौन से फॉर्म्स होते हैं? मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट पावर शेयरिंग इक्वल्स टू डिवाइडिंग पावर एंड इक्वल्स टू weakening the country। A similar thing we believe that it is assumed that all people of government must reside in a one person or a group of person located in one place. Otherwise, it would be very difficult to make a quick decision and enforce them. तो सब लोग ऐसा मानते हैं कि पावर शेयरिंग मतलब डिवाइडिंग पावर और वीकनिंग कंट्री। सिमिलरली थिंग वी बिलीव इन पास, पास में हम ये सोचते थे और ऐसा सोचते हैं कि पावर शेयरिंग करने से को एक पर्सन डिसाइड होता है और ग्रुप कुछ पीपल को जगह छोड़नी पड़ती है, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दोस nautical things. Otherwise, it would be very difficult to make a quick decision to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. In democracy, people rule themselves through institution of self-government. So in democracy, people rule themselves. People choose a one who people want a choose a one person who
think they want to rule themselves. Everyone has a voice in the shaping of policy. Everyone can take out a voice for public facilities. Therefore, in a democratic country, political power sharing should be distributed among citizens. The political power should be distributed among citizens. So, in modern democracy, power sharing can take many forms as mentioned below. Power sharing ऐसे forms में divided है. Power is shared among different organs of government such as legislative, executive, and judicial. It is called a horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level of exercise different powers. Such separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. तो सबका पावर शेयर्ड होता है, सबका अपना अपना काम दिया होता है और किसी का कोई लिमिट नहीं होती पावर की. मतलब किसी को लिमिटेड पावर मिले, किसी को ज़्यादा मिले, इट्स नॉट लाइक दैट. ईच ऑर्गन चेक्स अदर. सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. तो ये अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. तो अभी लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव मीन्स जो लॉ बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव मीन्स जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं लाइक पुलिस, आईपीएस, आईएएस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जुडिशरी मीन्स कोर्ट. तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट. अभी हमारे मिनिस्टर्स ने लॉ बनाए राज्यसभा लोकसभा में. अभी उनको लॉ को फॉलो नहीं किया तो जो पर्सन है उसको एग्जीक्यूटिव वाले अपनी कस्टडी में रखेंगे. और अब वो अगर एग्जीक्यूटिव वाले अगर रॉन्ग हुए तो जुडिशरी वाले उनको जज दिलाएंगे, मतलब उनको न्याय दिलाएंगे. So this is all interdependent. They all are interdependent on each other. Power can be shared among government as a different level. General government for entire country and government that at the provincial or regional level is called federal government. So federal government मतलब एंटायर कंट्री और कोई भी रीजनल क्या बोलते हैं a general government for the entire country and government at a provincial and regional level which is called a federal government. रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसे फेडरल गवर्नमेंट. पावर may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. अभी आप मुझे पूछोगे कि लिंग्विस्टिक मतलब क्या है. चलिए तो बताती हूँ लिंग्विस्टिक मतलब क्या है. लिंग्विस्टिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज. लैंग्वेज से जो रिलेटेड थिंग्स होते हैं वो लिंग्विस्टिक बोलते हैं. हाँ तो अभी हम कहाँ थे. हाँ फेडरल गवर्नमेंट पे थे. तो power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is a good example. अरे एक मिनट. सच मतलब पावर में भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप में भी पावर शेयर हो सकती है और इंडिविजुअल रीजन में भी हो सकते. पहले हमने देखा कि एक रीजन में भी हो सकते, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं. एक रिलीजियस कम्युनिटी में भी हो सकती है जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे बेल्जियम में हुआ. पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन वे political parties pressure groups and movement.
control, influence those in power. When two or more parties come an alliance to contest election, if they get elected, they form a coalition government. Thus, share power. मतलब हमारे इंडिया में भी एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और सीपीए और हमारा यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, भाजपा एनडीए में है, उनके साथ अलायंस बनाते हैं। उनके साथ कौन कौन अलायंस बनाएंगे? टीडीपी, बीएसपी, टीएमसी अलायंस बनाए थे। सो ज़्यादा सीट हुई थी तो वो लोग जीत गए। पावर शेयरिंग में सोशल ग्रुप्स और प्रेशर, मतलब जो प्रेशर डाल के अलग ग्रुप बनाते हैं ना, गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। लाइक हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ था कि गुजरात में ऐसा हुआ था कि एसटी, एससीज और ओबीसी उनको 1/3 सीट्स मिल जाती थी। पुअर लोगों को सीट ज़्यादा मिलती थी और जो मीडियम लोग हैं उनको नहीं मिलती। तो हार्दिक पटेल जो थे उन्होंने कंटेस्ट किया उस टाइम पे। उन्होंने जेल में भी डाला था। अभी तो कुछ पता नहीं उनका। सो अभी पावर शेयरिंग कोलिनेशन और अलाइन में भी हो सकती है, ये तो हमने देख लिया। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय।